میں دو طرح کے ایمان کا ذکر کروں گا، دو قسم کا ایمان، ٹو کائنڈس آف فیتھ، اور میں پڑھوں گا یعقوب اس کا دوسرا باب 19ویں اور 20ویں آیت۔ آپ حیران ہوں گے آج کا پیغام سن کے، دو طرح کا ایمان۔ تو پڑھیے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں گڈ فار یو۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں، مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے؟ اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے؟ تو آج دو طرح کے ایمان آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک ہے مردہ ایمان اور ایک ہے زندہ ایمان۔ آر یو ریڈی؟ مردہ ایمان اور زندہ ایمان۔ اور یہاں لکھا ہے تو یہ ایمان رکھتا ہے خدا ایک ہے، اور آگے لکھا ہے خیر اچھا کرتا ہے۔ وضاحت میں جانے سے پہلے تھوڑا سا سیاق و سباق ذرا چلے جاؤ پیچھے۔ یہ خط جو یعقوب کا خط ہے، یہ یعقوب نے لکھا ہے۔ یہ یعقوب کون تھا؟ یہ خداوند یسوع مسیح کا سگا بھائی تھا۔ سگا بھائی اس طرح سے مقدسہ مریم اور یوسف کا بیٹا ہے، برادر۔ تو مقدسہ مریم اور یوسف میں سے یہ اس کا سگا بھائی تھا، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد مسیح پر ایمان لایا تھا۔ اور وہ یہ خط لکھتا ہے، یہ یعقوب کا خط اسی نے لکھا ہے، اور اس نے اپنے تعارف میں کہا ہے میں یسوع مسیح کا بندہ، یسوع مسیح کا غلام ہوں۔ اس نے ڈیک نہیں ماری، اس نے فخر نہیں کیا، شیخی نہیں ماری، اوے میں مقدسہ مریم کا بیٹا ہوں، کہتے میں یسوع مسیح کا غلام ہوں۔ تو یہ میں نے آپ کو بس منظر بیان کر دیا۔ اب یہ دوسرا باب ہے، یہ دوسرے باب کی میں نے 19-20 آیت پڑھی ہے۔ دوسرے باب کی 11ویں آیت سے 26ویں آیت تک ایمان کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ مردہ ایمان، زندہ ایمان، مردہ ایمان، زندہ ایمان، یہ اس میں بات ہوئی ہے۔ اب میں ذرا آپ سے پہلے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں جواب کے لیے، اور میرا خیال ہے اب سب ہاتھ کھڑا کریں گے۔ سوچئے، سوچ کے ہاتھ کھڑا کریں۔ کتنوں کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا خالق ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے؟ آپ کا ایمان ہے کہ اس نے آپ کو خلق کیا ہے؟ کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے؟ جی ہاتھ دکھائیے اور یس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسری بات، کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا؟ آپ کا ایمان ہے کہ یسوع گناہوں سے نجات دینے آیا؟ واہ، بہت خوب۔ کیا آپ کا ایمان ہے، رسولوں کے عقیدے میں جیسے پڑھتے ہیں یسوع مصلوب ہوا، دفن ہوا، جی اٹھا، کیا آپ کا ایمان ہے کہ یسوع آپ کے لیے مصلوب ہوا، آپ کے لیے دفن ہوا، آپ کے لیے جی اٹھا، آسمان پہ چلا گیا، اور آپ کے لیے آنے والا ہے؟ جتنوں کا ایمان اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ تو آپ حیران ہوں گے میرا اگلی بات سن کے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ محض ایسا ایمان رکھنے والے جو آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہے آسمان پہ نہیں جائیں گے۔ محض کا مطلب ہے صرف، اونلی۔ محض ایسا ایمان رکھنے والے جیسا آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے اعلان کیا ہے آسمان پر نہیں جائیں گے، یہ مردہ ایمان ہے۔ مشکل آیت ہے یہ والی، کافی مشکل ہے، لیکن آپ سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میرا ایمان ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں محض ایسا ایمان آپ کو آسمان پر نہیں لے جائے گا، ایسا ایمان آپ کو نجات نہیں دے گا۔ اور پھر آپ کا یہ بھی شاید ایمان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ کا ایمان ہے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو جہنم میں بھیجے گا، آگ سے سوٹے گا۔ ہے ایمان؟ ہاتھ کھڑا کر دے۔ ہے ایمان کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو جہنم میں بھیجے گا؟ اور آپ کا یہ بھی ایمان ہے یسوع راست بازوں کو اپنے ساتھ آسمان پہ لے جائے گا؟ آپ کا ایمان ہے؟ بتا دوں، ایسا ایمان محض صرف یہ ایمان مردہ ہے۔ تھوڑا سا
सा आप में वो तजस्सुस आया कि यार हम तो ईमान रखते हैं और पास्टर कह रहे हैं कि जी आप आपसे नहीं कहा रहा, महज का लफ्ज आपने सुना होगा कि सिर्फ ऐसा ईमान, इसका मतलब कुछ इसके साथ ऐड होना चाहिए। तो महज ऐसा ईमान मुर्दा ईमान है। अच्छा, अब एक मिनट आपको, आप जरा करीब होते, मैं आपको ही बुलाता हूं, मैं आपको ईमान की 2 काइंड्स मिनटों में सिखा देता हूं। मौसम का निजात से पहले जब आपने तौबा नहीं की थी, निजात नहीं पाई थी, आपने यीशु को शख्सी निजात देना कबूल नहीं किया था, क्या आपका ईमान था कि यीशु निजात देने वाला है? जी सुन लीजिए, तौबा नहीं की, निजात नहीं पाई, यीशु को कबूल नहीं किया, इनका ईमान था कि यीशु गुनहगारों को निजात देने वाला है। बिल्कुल ईमान था। क्या आपका ईमान था कि यीशु आपके लिए हुआ, दफन हुआ, जीवना? जी। निजात से पहले, तो निजात तो बाद में पाई। इसका मतलब वो जो ईमान आपका था वो मुर्दा था। निजात से पहले, ईमान को अमल में लाने से पहले जो भी आपका ईमान है, आपका ईमान मुर्दा है। लेकिन बाद में क्या हुआ? आपका जो ईमान था, इनका ईमान था कि यीशु मसीह गुनहगारों को निजात देता है। और एक दिन इन्होंने कहा, जरा मेरी तो देखिए प्लीज, सामने देखें, इनका ईमान था कि यीशु गुनहगारों को निजात देता है। एक दिन इन्होंने कहा, ऐ यीशु, मेरा ईमान है कि गुनहगारों को तू निजात देता है, आज मुझे गुनाह से निजात दे दे। आपने उस ईमान को जो आपका अपना ईमान था, you brought that faith into practice, आप उस ईमान को अमल में लाए और आपको निजात मिल गई। बोले हालेलुया। तो आपका मुर्दा ईमान जिंदा ईमान में तब्दील हो गया। थैंक यू। तो ऐसा ईमान जिसके साथ अमल नहीं है वो मुर्दा है। अगर कोई ये कहता है, जरा प्लीज आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई ये कहता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, उसने मेरे लिए खून बहाया, ईमान तो अच्छा है लेकिन फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब आप कहेंगे है खुदावंद यीशु, मेरा ईमान तो है कि तू निजात देता है, तू शिफा देता है, गुनाह माफ करता है, अपने लहू से धोता है, मेरा गुनाह माफ कर दे, मेरे दिल को अपने खून से धो दे। जब तक आप ईमान लाते नहीं है, महज आपका ईमान मुर्दा है। तो 2 तरह का ईमान, एक वो ईमान है जो आप रखते हैं। बोलिए कौन सा ईमान है? एक वो ईमान है जो आप, मैं चाहता हूं रिपीट करें, एक वो ईमान है जो आप, दूसरा वो ईमान है जो आप लाते हैं। रखने और लाने में फर्क है। सारी दुनिया ईमान रखती है, जो ईमान रखते हैं वो मुर्दा है, लेकिन जो आपका ईमान है उस पर ईमान लाते हैं, आप अमली कदम उठाते हैं। यू ब्रिंग योर फेथ इनटू प्रैक्टिस, आप अपने ईमान को अमल में लाते हैं तो वो ईमान जिंदा ईमान बन जाता है। बोले हालेलुया। एक छोटी सी मिसाल दूंगा ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाए। एक बार पहले भी दी थी मैंने। अगर कोई बाहर गाड़ी खड़ी है, शनाख्ती कार्ड जो बनाने वाली गाड़ी है नादरा की, वो खड़ी है और वो स्पीकर पे ऐलान कर रहे हैं, हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, नासरत रोड पर गुड न्यूज चर्च के सामने गाड़ी खड़ी है, जिन्होंने अपना आईडी कार्ड बनाना है वो यहाँ आ जाए। आपका आईडी कार्ड नहीं बना, आप घर में बैठ के खुश हो रहे हैं, वाह यार हुकूमत तो कमाल है यार, हुकूमत ने तो कमाल कर दिया, गाड़ी आ गई, और वो गाड़ी में आके यहीं पे खड़े खड़े आईडी कार्ड बना रहे हैं, घर बैठे खुश हो रहे हैं और जाके बनाते नहीं है। आपका ये तो यकीन है गाड़ी आई है, आपका ये तो यकीन है कि वो आईडी कार्ड फ्री बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या फायदा? आप तो गए ही नहीं, आपने तो बनवाया ही नहीं। आपका ऐसा ईमान मुर्दा है। अब आपको समझ आ गई? अब अगर आप जो यकीन है उसको अपनी जमा में लाए और बाहर निकल के कहे भाई ये मेरे कवायद है, ये मेरे बाप का आईडी कार्ड है, ये मेरी माँ का आईडी कार्ड है, मेरा आईडी कार्ड बना दें, तो वो आपका आईडी कार्ड बना देंगे, क्योंकि अनाउंसमेंट हो रही है। तो आपने अपने यकीन को आपने अमली जमा में लाया। तो पहला ईमान जिसके साथ अमली जमा नहीं है वो मुर्दा है। तो फिर सुनिए, ये जो ईमान है जो मैंने आपसे हाथ खड़े करवाए थे, ये सारे नामी मसीह भी रखते हैं, सारे नामी मसीह। लेकिन आप हैरान होंगे, मैंने बहुत से दूसरे मजहबों के लोगों से मिला हूं,
यीशु मसीह बहुत अजीम था। हिंदुओं को मैंने सुना है, सिखों को कहते सुना है, कहते कि खुदावंद यीशु मसीह क्या अजीम हस्ती थी, वो तो मौजज़े करता था। ऐसा ईमान निजात नहीं दे सकता। और कुछ कहते हमारा ईमान है कि यीशु मसीह कवारी से पैदा हुआ और वो मौजज़े करता था, ऐसा ईमान निजात नहीं दे सकता। आप हैरान होंगे, बदरूहें भी ऐसा ईमान रखती है। आपने जो हाथ खड़े करके कहा था ना, बदरूहें, ये आज समय है एक कमे आप उससे पहले इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा क्या है, खैर अच्छा करता है। शयातीन, डीमंस, बदरूहें, क्या लिखा है यहाँ पे, शयातीन ईमान रखते और थरथराते हैं। ईमान रखते हैं, ईमान लाते नहीं। हेलो, बदरूहें ईमान रखती हैं, ईमान लाती नहीं। शयातीन ईमान रखते हैं, ईमान लाते नहीं। तो फिर मैं बदरूहों के बारे में बताऊं। मुझे बताएं, बदरूहें आसमान की बादशाही में जाएंगी? हेलो बोलिए, बदरूहें जाएंगी आसमान की बादशाही में? लेकिन उनका तो ईमान है। देखिए जरा मत्ती की इंजील 8वां बाब उसकी 29 वर्ष है। मत्ती की इंजील 8वां बाब 29वीं आयत। यहाँ पर एक ऐसे बदरू गिरफ्तार का जिक्र है जिसमें बदरूहों का लश्कर था। मरकुस 5 बाब में भी ये वाकया है। और जब यीशु मसीह गन्नेसरत के रास्ते में से गुजरा, कब्रिस्तानों के पास से गुजरा, वहां एक शख्स था जिसमें बदरूहें थी, लश्कर था। जब उसने यीशु को देखा, मत्ती की इंजील 8वें बाब की 29 आयत तो लिखा है, और देखो, ये मत्ती ने इसको 2 कहा है, मरकुस ने 1 लिखा है। दरअसल 2 ही है और मरकुस ने 1 का वाक्य बयान किया है, 1 की बात है। और उन्होंने चिल्ला कर कहा, ऐ खुदा के बेटे। बदरू क्या कह रही है जी? बोलिए, बदरू क्या कह रही है? बदरू क्या कह रही है? ऐ खुदा के बेटे, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहां आया है कि वक्त से पहले हमें अज़ाब में डाले? मतलब वो एक तो खुदा का बेटा मानती है बदरूहें, दूसरे नंबर पे ये भी मानती है कि हमें अज़ाब में डालेगा तो यही डालेगा, जहन्नम में भेजेगा तो यही डालेगा। तो कहते क्या तू इसलिए आ गया वक्त से पहले? कितना इल्म है उनका बदरू होगा। उन्हें पता है यीशु आएगा, आसमान से अदालत करेगा, तब जहन्नम में भेजेगा। इतना उनकी वाकफियत भी है। बहुत से लोगों की बड़ी वाकफियत है, खुदा की बड़ी वाकफियत होती है, इनकी वाकफियत है। वो कहते हैं खुदा का बेटा भी है और तू आएगा भी जरूर, जहन्नम में भी डालेगा, लेकिन वक्त से पहले ही अभी। मुझे बताएं, बदरूहों का ये ईमान उन्हें जहन्नम से बचा सकता है? बोलिए, ये मुर्दा ईमान। तो फिर एक और मिसाल, मरकुस की इंजील 1 बाब उसकी 24वीं आयत। अब ये मजेदार कहानी है। खुदावंद यीशु मसीह हैकल में था, यहूदियों की इबादतगाह में, और वहां एक आदमी था जिसमें बदरू थी, हैकल में। अच्छा, कई लोग अपने घर में बाइबल रखते हैं इस वजह से, पढ़ने के लिए नहीं, ईमान लाने के लिए नहीं। बदरू बाइबल घर में होगी तो बरकत आएगी, बदरू नहीं आएगी। बाइबल घर में होगी तो बीमारी चली जाएगी। कई लोग बाइबल को अपने बच्चे के तकिए के नीचे रखते हैं। और भाई ये तावीज नहीं है बाइबल। बाइबल खुदा का कलाम है, ये पढ़ने की चीज है, ये सुनने की चीज है, अमल करने की चीज है। ऐसी हरकतें उनको कुछ भी नहीं दे सकती। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, ये शख्स हैकल में था और बदरू गिरफ्तार था। आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत से लोग चर्च में होते हैं, मीटिंग में होते हैं, बशारती कन्वेंशन में होते हैं, लेकिन गुनाह अंदर होता है। और ये बदरू जो है, बदरू वाला शख्स चर्च में था, हैकल में था। मैं आपको नहीं कह रहा, आप में से कोई ऐसा है जो कलीसिया में तो बैठा है लेकिन गुनाह अंदर है, बदी अंदर है, ईमान रखता है, ईमान लाया नहीं है, मुर्दा ईमान रखता है, तो वो खतरे में है। ये बदरू देखे, वो कहती है ए यीशु नासरी, यानी वो मान रही है। यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब, हेलो बोलिए, यीशु का मतलब, बदरू मानती है यीशु निजात देने वाला है। ए यीशु नासरी, नासरी का मतलब तू नासरत में पैदा हुआ था, तू नासरत का रहने वाला है, और हमें तुझसे क्या काम?
क्या तू हमको हलाक करने आया है? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूं। बदरू जो अंदर थी, जिन था, देव था, वो कहता है मैं जानता हूं कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। जिन कह रहा है, देव जो अंदर है वो बोल रहा है मैं जानता हूं कि तू खुदा का कदूस है। ऐसे बदरू में बोलती है, तो मैं तो कभी नहीं बुलाता उन्हें, किस लिए बुलाए उनको? अच्छा बड़ा ऐसे बोलती है मैं जानता हूं कि तू खुदा का कदूस है। यदि बदरू जानती है कि ये खुदा का कदूस है, खुदा का पाकीज़ा हस्ती है, सब कुछ जानता है, क्या आप मुझे बताएं ये बदरू जो जानती है यीशु को कि ये खुदा का कदूस है, ये आसमान पे जाएगी? नो, नेवर। तो फिर ये कैसा ईमान है? बोलिए कैसा ईमान है? ये ईमान की एक ऐसी किस्म है जो मुर्दा ईमान है, जो सिर्फ ईमान रखा है, लाई नहीं है, ऐसा ईमान मुर्दा है। तो फिर इस ईमान को जिंदा करने का तरीका क्या है? अभी एक मौसम को मैंने खड़ा किया था, मुर्दा ईमान को जिंदा ईमान में बदलने का तरीका क्या है? जो आपका ईमान है उसको अगली शक्ल दे दे। आपका ईमान है यीशु मसीह आपके लिए हुआ, उसने आपके लिए खून बहाया, तो उसे कह दे यीशु ईमान तो पैदा होने से पहले का है, मेरे बाप दादा से चलता आ रहा है कि तू सलीब पर हुआ मेरे लिए, लेकिन आज तक मैंने तुझे कहा ही नहीं है, मेरे दिल को अपने खून से धो के पाक कर दे। तो फिर आप जो आपका ईमान है, आपने उसको अमली जामा बनाया, आप उसको मश्क में लेकर आए, आपने करके दिखाया, आपने ईमान को ईमान में, अमल में बदल दिया, तो आपका ईमान जिंदा हो गया। बोले हालेलुया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सादा लफ्जों में आपको समझाऊं। तो अगर ईमान सिर्फ रखा है, लाए नहीं है, तो जहन्नम में जाएंगे। देखिए मत्ती की इंजील 7वां बाब, अब मुझे थोड़ा तेज होना पड़ेगा, मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 21वीं आयत। और मैं आपको बताऊं, मैं बचपन से मेरे कलाम जब सुनता था, बचपन से, तो हमारे घर में एक पादरी साहब आते थे मैथनिया के, भाई उनका गुलाब नाम था, उन्होंने हर पैगाम में ये दो आयतें बोलते थे, और पढ़ के देखे मत्ती 7:21, लूका 6:46, मेरे ख्याल हर पैगाम में वो कहते थे मत्ती 7:21 पढ़े, लूका 6:46 पढ़े। मुझे बचपन से ये दो हाल याद, बचपन से। तो मत्ती 7:21, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से सारे के सारे आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे, जाएंगे लेकिन सब के सब नहीं। जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, खुदावंद का मतलब क्या है? बोलिए जरा मतलब खुदावंद का। आपने यीशु का मतलब बताया था, निजात देने वाला। खुदावंद का मतलब क्या है? मालिक, जैसे गुलामों का मालिक होता है। तो मुझे खुदावंद कहते हो, खुदावंद अगर कहते तो उसकी तो बात माननी पड़ेगी, उसका तो आर्डर मानना पड़ेगा। आप गुलाम हैं, गुलाम का तो लाजिम है कि अपने मालिक की बात माने। खुदावंद का मतलब मालिक, तुम मुझे खुदावंद कहते हो, मेरी बात नहीं मानते, तुम मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, जो कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में से दाखिल नहीं होगा, उनमें से कौन होगा? ये आयत अक्सर गलत समझी जाती है। ये पहली आयत, अक्सर लोग इस आयत को गलत समझते हैं, वो समझते हैं कि कोई भी दाखिल नहीं होगा। जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, वो कहते हैं हर एक नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। भैया आयत को अच्छी तरह से पढ़े, अगली आयत के साथ पढ़े। मगर नहीं पढ़ते, एक आयत में पढ़ ली, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं, वो आसमान की बादशाही में जाएंगे, अगली आयत भी पढ़ लें। मगर वही जो खुदावंद कहते तो हैं, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पे चलते हैं, जो मेरी मर्जी पे चलते हैं, जो मेरे कलाम पे अमल करते हैं, जो मुझे वाकई दिल से खुदावंद कबूल करते हैं, कहते हैं आज मैं तुझे अपना खुदावंद मानता हूं, वो आसमान पे जाएंगे। हालेलुया बोलिए, बोले हालेलुया। जो खुदावंद कहते हैं, सिर्फ कहते हैं, गुनाह वही पे है, झूठ वही है, गालियां वही है, ऐब जोई वही है, चुगली वही है, दूसरों के शोहरों में बुरी नजर रखना वही है, दूसरों की बीवियों में बुरी नजर रखना अपनी जगह पे है,
जालसाजी अपनी जगह पे है, झूठे सर्टिफिकेट देना अपनी जगह पे है, मीटर घुमा के बिल के लिए पीछे कर देना आजकल तो होता नहीं, पहले करते थे। बिजली चोरी करना अपनी जगह पे है, और नाजायज पैसा कमाना अपनी जगह पे सारा। लेकिन खुदावन 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 बड़े दिन को गिरजे जाना में, बड़े दिन को घर से जाना में, गुड फ्राइडे को काले कपड़े पहन, क्या फायदा? जो खुदावन खुदावन कहते हैं लेकिन अमल नहीं करते, वो मुर्दा ईमान रखते हैं। अब यह देखिए लूका 6:46, मैंने कहा था मुझे बचपन से दो वाले याद है, मत्ती 7:21, लूका 6:46। तो ये लिखा है जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावन खुदावन कहते हो? मत करो। और यशायाह में जो इतना सख्त लिखा है, जब गुनाह तुम्हारे अंदर है मुझे तुम्हारी दुआ से नफरत है। यशायाह कह रहा, मुझे तुम्हारी ईदों से नफरत है, मुझे तुम्हारी कुर्बानियों से नफरत है, दुआ से नफरत है, और तुम्हारी दुआ भी मेरे लिए गुनाह है। और तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान एक दीवार है, वो गुनाह की दीवार है। जब तक वो दीवार नहीं ढाई जाती मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो समझ गए, मुर्दा ईमान वाले दीवार के उस तरफ है। तो फिर ऐसा ईमान रखने वाले कहां जाएंगे? जहन्नम में। मुजरम मरकुस 16:16, जो ईमान लाए, देखिए अभी आए, जो ईमान लाए, जो ईमान रखे या लाए, मुझे बताए, जो ईमान रखे या लाए, जो जिनका ईमान है या जो ईमान लाता है, क्योंकि रखना होना वो तो मुर्दा है। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और अगला हिस्सा, जो ईमान रखता तो है लेकिन ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा, मुजरम ठहराया जाएगा। अब मेरे पास टाइम कम है, लेकिन अगर मैं अगली किस्म नाम याद करूं, दूसरी किस्म साथ साथ बयान करता भी रहा हूं, लेकिन अगर वजाहत से ना करूं तो फिर ये नाम कमल रहेगा। तो दूसरी किस्म, अगर वो मुर्दा ईमान है, बेफायदा ईमान है, जहन्नुम में ले जाने वाला है, आप बता दें दूसरा कौन सा है? जिंदा ईमान, फायदामंद ईमान, जिसका नतीजा ये है कि जहन्नुम में भी खुदा की बादशाही में जाएंगे, वो जिंदा ईमान है। और ये दूसरी किस्म है। और ऐसा ईमान होने के बाद उसे ईमान लाया जाता है। अगर ईमान है कि यीशु निजात देने वाला है तो उसको निजात देना कबूल करें। हेलो, आपका ईमान है कि यीशु निजात देने वाले, तो उसे कहें कि मेरे गुनाह माफ कर दे, मुझे निजात दे दे। और फिर याद रखिए आपने ये कहा है एक दफा जिंदगी में, इसे तौबा कहते हैं। उसके बाद अमली कदम है, एक अमली कदम ये बताया, ईमान जो था आप लाए, फेथ और बिलीव, आपने बिलीव किया और अमली कदम उठाया और कहा मेरे गुनाह माफ कर दे, आपको तौबा आपकी कबूल हो गई, आपको नई जिंदगी मिल गई, आपको निजात मिल गई। बोले हालेलुया। यहाँ ऐसे लोग शायद बैठे हों जिन्होंने अभी तक ये कदम नहीं उठाया, या देखा देखी बपतिस्मा ले लिया हो बगैर सोचे समझे। तो ऐसा ईमान यीशु को कबूल करने से होता है, यीशु को निजात देने वाला कबूल करने से होता है। देखिए यूना पहला बाब 12 है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, अब सुनिए, ईद पेंतिकोस्त का दिन था, पतरस मनादी कर रहा था और कह रहा था यीशु मसीह तुम्हारे लिए मसलूब हुआ, वही गुनाहों से निजात देने वाला है। तो यूहन्ना पहले बाब में लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया यीशु ने खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक बख्श दिया। बोले हालेलुया। अगर आप कबूल करेंगे आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। बोले हालेलुया। यहाँ पे ऐसे बहन भाई बैठे हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं। गैर कौमें सुने, ईमान रखती हैं कि खुदा खालिक है, अच्छा करता है। हम भी ईमान रखते हैं, हम भी ईमान रखते हैं खुदा खालिक है। फर्क ये है, हमारे निजात पाने के बाद वो हमारा खालिक भी है और हमारा निजात देने वाला भी है। हालेलुया। उनका सिर्फ खालिक है, उनका सिर्फ परवरदिगार है, उनको सिर्फ रोजी देता है, हमें निजात भी देता है। हमारा बाप भी है, हमारा परवरदिगार भी है, हमारा मुनज्जी भी है, हमारा खुदावंद भी है। बोले हालेलुया। तो ईमान लाके
ہم نجات پاتے ہیں. عیدی پینتیکوست کے دن 3000 لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے توبہ کی منادی کو قبول کیا اور بپتسمہ پایا. بولے ہاللیلویا. میں بہت سی مثالیں چھوڑ رہا ہوں بلکہ میں ختم کر رہا ہوں. اگلے اتوار میں دوسرے حصے میں پیغام شروع کروں گا. دوسرا حصہ زندہ ایمان. اگلے اتوار میں کون سا پیغام سناؤں گا؟ کون سا ایمان جو مردہ نہیں ہے، جو ہے تو صحیح آپ کے اندر. تو میں بتاؤں گا جس کو آپ عملی جامہ بنایا، آپ نے اس کو you have brought it into practice، آپ اس کو مشق میں لائے ہیں. زندہ ایمان اگلی دفعہ سناؤں گا. لیکن آخری بات کروں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ کو جانچیں. محض ایمان ہے یا آپ ایمان لائے ہیں؟